علی کو بلایا، خندق میں بلایا تو علی کو بلایا، پروردگار پروردگار، اللہ سے کہہ رہے ہیں نبی جب چاروں طرف گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی کہہ رہے پروردگار پروردگار مجھے علی سے ملا دے، پروردگار مجھے علی سے ملا دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی آ جاتے، اللہ کے حکم سے آ جاتے، لیکن اس وقت بھی رسول نے کہلوا کے بھیجا، رسول کو کہلوایا فرشتے سے کہ یا رسول اللہ کہیے ناواد علی جان مظہر اللہ جائے، کہو گے تو آئے گا۔ رسول نے پکارا، علی آ گئے، اور پھر گھمسان کی لڑائی آپ نے سنی ہے، نہ میں نے خندق پڑھ دی ہے نہ خیبر، مجھے تو فکر آپ کے حوالے کرنا ہے۔ میں تو یہ باتیں گنوا رہا ہوں کہ اس موقع پر بھی کسی کو نہیں بلایا، جب سب چلے بھی گئے اس وقت بھی کسی کو نہیں کہا رک جاؤ میں یہاں ہوں، اس وقت بھی کسی کو نہیں روکا، اس وقت بھی کسی کو نہیں روکا۔ بس اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو پھر سننے کی طاقت اور حوصلہ رکھو، میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تاریخ کے لیے پھر بھی نہیں بلایا، پھر آ گیا آخری اور پہلا حج جسے پیغمبر نے ادا کیا، فتح مکہ کا موقع۔ اس موقع پر بھی عالم یہ ہے کہ پیغمبر نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا کہ فلاں فلاں کے گھر میں جو چلا جائے اسے امان ہے۔ سلامات بھیجیے محمد والے محبت۔ نہیں اتنی ٹھنڈی سلوات پڑھیں گے تو قبلہ سمجھیں گے، میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں مجھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبلہ تشریف لے آئے، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن بات آپ کے حوالے کرنی جس کے تاریخ قبلہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب تمہیں نبی پکارے اس کی طرف دوڑتے چلے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زندگی بانٹ رہا ہے۔ تو میں اپنے مجمع کو یہ بتا رہا تھا کہ سن 1 ہجری سے لے کر، یعنی تاریخ جب سے شروع ہوئی اور مکے کی تاریخ سے لے کر اعلان رسالت سے لے کر 11 ہجری تک ایک موقع ہے جب امت کو بلایا ہے، ایک موقع ہے جب امت کو بلایا۔ آپ سناٹے میں چلے گئے ہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جسے جہاں جگہ مل رہی وہ بیٹھ جائے۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکے میں بھی پورے 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ جب پیغمبر اس شان سے مکے میں داخل ہوئے 1.25 لاکھ صحابی پیغمبر کے ساتھ، صحابہ یعنی پیغمبر کے ساتھ ہی پیغمبر کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت کتنا دبدبا تھا پیغمبر کا۔ اس وقت بھی کسی کو نہیں بلایا، اس وقت بھی کہا یا علی آ جاؤ، میرے کاندھے پہ سوار ہو، بتوں کو توڑو۔ علی کاندھے پہ سوار ہو گئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا، بت توڑے۔ یہ حج ادا ہوا، حج ادا ہونے کے بعد بھی واپس پلٹے مقام حجفہ پہ پہنچے تھے۔ یہ آیت اتری حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تم نے آج بھی یہ کام نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ جو بیٹھا ہے جیتا ہوا اس نے جملہ پہنچانا ہے۔ اگر آج بھی یہ کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب پیغمبر نے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ، جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ یہ واحد موقع ہے جب سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علیہ۔ یہ پہلا موقع ہے نبوت کی حیات کا کہ جب نبی نے بلایا۔ اس کا مطلب آج نبی اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے درمیان حیات تقسیم کرے۔ تو پھر مجھے کہنے دو ادھر ادھر کی بات آتی نہیں، مجھے سیدھی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے اس دن بتا دیا تھا ولایت علی ہی اصل حیات ہے۔ بولو سارے حیدر۔
क्या ये आवाज गदीर तक के लिए थी? क्या पैगंबर की ये आवाज गदीर के लिए थी? कि नहीं, जब तक कुरान की आयत मौजूद रहेगी पैगंबर की आवाज का असर बाकी रहेगा। इसका मतलब जिसे भी हयात चाहिए वो अली के दरवाजे पे आ जाए। तकरीर तो खत्म कर देता लेकिन जुमला न कहा तो क्या कहा? खुदा की कसम इधर ऐलान करके पैगंबर मदीने तशरीफ लाए, या कहते हैं साजिशियों ने एक पहला अली का खुला दुश्मन तैयार करके सामने भेजा। पहला खुला दुश्मन। अब तक दिलों में अली का बोझ छुपा हुआ था, ये पहला खुला दुश्मन आया। इसने आते ही कहा आपने हमें नमाज का कहा हमने पढ़ी, रोजे का कहा हमने रखा, हज का कहा आपने किया, जिहाद के मैदान में बुलाया जैसे तैसे हम आए। जैसे तैसे हम आए। हज का आपने कहा हमने किया, कुर्बानी भी दे आए। जाते जाते भाई को हम पे मुसल्लत किए जाते हो। थोड़ी आवाज़ खोले तो मैं जुमला कहूँ। जाते जाते भाई को हम पे मुसल्लत किए जा रहे हो। पैगंबर ने इसकी तरफ देखा, चेहरे पे शिकन आया अपनी तरफ। इसका मतलब एक बात वाज़े हो गई। क्या वाज़े हुआ? इसका मतलब हारिस इब्न नुमान फ़हरी मलून नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, खुम्स भी देता है, जिहाद भी कर ही लेता है, हज भी कर करके अभी ताज़ा ताज़ा करके आया है, जिहाद भी किया हुआ है, नमाजी भी है, रोज़ादार भी है। इसने कहा कि जाते जाते भाई को हम पे मुसल्लत किए जा रहे हो। अगर अपनी तरफ से कहा है, काफिर सरिश्त दिमाग देखिएगा, अगर अपनी तरफ से कह रहे हो तो फिर अल्लाह तुम पे अज़ाब भेजे, जिसकी वजह से कायनात को अमान है। अली की दुश्मनी में कह रहा है अल्लाह तुम पे अज़ाब भेजे। लोगों ने रसूल के साथ अली की विलायत के लिए किया। मैं तो फिर अहमद हसन हूं, तुम चुप कर जाओ तो तुम्हारा अपना मुकद्दर है। जुमला तो एक ही है जिसके लिए सारी तमहीद कराया हूं बसदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। याद रखना अजीज़ाने गरामी कदर, या ये कह के पलट रहा था कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया है तो फिर तुम पे आए। अल्लाह की तरफ से कहा है तो तुम पे अज़ाब आए, और अगर अपनी तरफ से कहा, अल्लाह की तरफ से कहा है तो मुझ पे आए अज़ाब, और अगर अपनी तरफ से कहा है तो तुम पे आए। ये कह के वापस पलटा था। या अबाबीलों के झुंड में से अल्लाह ने एक को वापस बुलाया था। उसे कहा जा अब तेरी बारी है, जाके अली के दुश्मन पे हमला कर। या ऐसे में छोटा सा परिंदा ये सवारी पे सवार हो गया। वो परिंदा अपने दहन में चोंच में पत्थर लेके उतरा। जैसे ही इसके सर पे आया, सर से पत्थर आया, ये समझ रहा था पैगंबर की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। अल्लाह भी तो अल्लाह है, अल्लाह भी तो जानता है। अल्लाह ने कहा इसकी मौजूदगी में मैं अजाब नहीं भेजता, लेकिन मैं अली के दुश्मन को भी नहीं छोड़ रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं अली के दुश्मन को भी नहीं छोड़ता। परिंदा है, मैं अली के दुश्मन को भी नहीं छोड़ता। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो पत्थर लेके आया, उसने पत्थर छोड़ा, ये सुना हुआ है आपका वाकया, फिक्राब है, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। उसने पत्थर हवा में छोड़ा, सर में आया, हारिस के सर को चीरा, जिगर में आया, जिगर को चीरा। जिस सवारी पे बैठा हुआ था खुद तो मिस्मार हुआ ही हुआ, खुद तो भूसे की मानिंद हुआ। जिस सवारी पे बैठा हुआ था वो भी भूसे की मानिंद हो गई। बस जैसे ही वो भूसे की मानिंद हुई, मेरा जुमला याद रखना, अपनी नस्लों तक मेरा जुमला पहुंचा देना, खुदा की कसम। किरमानी साहब, जैसे ही पत्थर ने दोनों को भूसे की मानिंद किया, मैंने हाथ बांध के कहा परवरदिगार, हारिस तो अली की विलायत का खुदा दुश्मन था, उस पे अजाब आया तो समझ में आई जिस सवारी पे बैठा हुआ था उसका क्या कसूर था। आवाज़ अहमद हसन में दुनिया को बताना चाहता हूँ, आज हो या कयामत तक जब भी ये कानून याद रखना, मैं सिर्फ अली के दुश्मन को ही सजा नहीं देता, जो उसे सहारा देता उसे भी अज़ाब। क्या कहना।
अली अली होता है, गहवारे में हो तब भी अली है, मैदान में हो तब भी अली है। और अगर हुसैन किसी अली को मैदान में ले आए तो अब ये कैद नहीं है कि 6 महीने का है कि 18 बरस का। और मौला किसी गम में न रुलाए आपको सिवाय गमे से। हुसैन के गम में रोने वालों, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई। सैयदा को जैसे तुम्हारे आंसू पसंद है वैसे गिरिए की बुलंद आवाज़ें भी पसंद है। मेरा कोई इमाम ऐसा नहीं जिसने ये ना कहा हो जब भी हमारी मुसीबत पे रोना चीख मार के रोना, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश पे रोती। शर्मा के न रोया कर मजलूम के गम में। हद नहीं हो गई जब हुसैन आगाज़ सुबह आशूर से एक एक कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में भेज रहे थे। हुक्म है बानियान की तरफ से, किबला में बस ज़्यादा वक्त नहीं लेना, मैं बानियान के हुक्म की तामील करूं। अज़ादारों, मक्तल कहता सुबह से हुसैन कुर्बानियाँ दे रहे थे या सब मारे गए, तन्हा रह गया हुसैन। आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना अमा मिन मुक़ीस युग़ीसुना। है कोई जो हुसैन की नुसरत करे या एक दफा खैमगाह में कोहराम बपा हुआ, हुसैन ने खैमगाह का पर्दा उल्टा तो तारीख कहती है, पूछा ज़ैनब ये कैसा शोर है? कहा भैया जब आपने गुर्बत का इस्तग़ासा बुलंद किया असगर ने अपने आप को झूले से गिरा। असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अल्लाह लाओ अली असगर का शबू का तब्दील करवाओ, मैं असगर को मैदान में लेके जाता हूँ। हुसैन जानते हैं कि पानी नहीं देंगे मलूल, लेकिन इत्मीनान हुज्जत है, इत्माम हुज्जत के लिए हुसैन लेके चले। अब माँ का हौसला भी देखो जिसने 6 माह के बच्चे को बाप के हवाले किया। तारीख कहती है हुसैन लेके चले तो धूप बहुत तेज थी, असगर के चेहरे पे अपनी अबा का दामन डाला। फौज यजीद समझी हुसैन कुर्बानियां दे के थक चुके हैं इसलिए कुरान ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही हुसैन ने अबा का दामन हटाया तो देखा एक कुमलाया हुआ फूल है। आवाज देख गए, फौज यजीद तुम्हारी नजर में मैं सदावार हूँ, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हो सके तो एक घूंट पानी पिला दो, साहिबाने औलाद तुम्हारे लिए फिक्रा पड़ता हो। या तारीख कहती हुसैन ने हाथों पे असगर को बुलंद किया और बुलंद करके कहने लगे, अली असगर तो हुज्जत खुदा का बेटा है, जरा तमाम हुज्जत कर। या छोटे छोटे लबों पे असगर ने खुश्क जबान फेरी। ये असगर का ऐसा हमला था, 9 लाख मुंह फेर फेर के रोने लगे। तू अब भी किसी ख्याल में बैठा है, जुमला कयामत से कम नहीं है। या पिछले साल देखा अब्बास को मारा गया है, अब कौन आया है जिसने मेरी फौज में हलचल पैदा की है? आवाज आई हुसैन 6 माह के बच्चे को लाए हैं। आवाज आई हुरमला को बुलाओ, हुरमला इफ्ता कलाम अल हुसैन। यही हक है जैसे रो रहे हो, ये गिरिए का हक है। मौला शाहिद है अव्वल से लेके आखिर, तारीख गवाह है। हुरमला इफ्ता कलाम अल हुसैन, उसने कहा जंग खत्म हो गई है, अब कौन आया है? आवाज आई असगर को ले